Okay, very good morning, all of you students of class 10. Welcome you all in our online classes of social science presented by SP sir. Dear student, we have started history, and in history, almost we have started the first chapter, nationalism in Europe. I have given you my first video of this chapter. Today we will go through by the second part of this chapter. We will go through the second part of the video. So dear students, let's find out your copy and pen with you and watch this video carefully. Wherever you will face any problem to understanding, you just note down that and send me in WhatsApp. Give me your feedback regarding this video, and wherever you find problem to understanding, please send me your problem. I will try to solve as much it possible. So let us start. We had started the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Most of the part we had done. Today we will start with the topic of the making of nationalism in Europe. Our today's topic is the making of nationalism in Europe. Okay, if you look at the map of mid-18th century, Europe will find that there were no nation states as we know them today. If you find 18th century Europe, whatever the picture you are seeing today of Europe in the map, it was not there like today on that time's map. What we know today as a Germany, Italy and Switzerland What we know today as a Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. So, Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territory. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. इसमें सभी कोई अलग अलग भागों में बटे हुए थे, लेकिन सभी कोई अलग अलग डिवाइड थे और उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. सभी का अपना अलग अलग पहचान था. Often they even spoke different languages and belongs to a different ethnic groups. यहाँ तक कि वो अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, अलग अलग ethnic groups के थे. The Habsburg Empire, the ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It includes the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also includes the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar. Half of the population spoke Magyar, while the other half spoke variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish,
Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire. इतना कुछ अलगाव होने के बाद भी वो एक ही एम्पायर के अंदर में रहते थे. A mass of subject peasants, people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croats in the south, the Romans in the east, in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. सभी कोई अलग अलग क्षेत्र में थे, अलग अलग तरह के थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग बोली बोलने वाले थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, लेकिन सब में और ये इनका जो अलगाववाद था, इसमें ये भी नहीं था कि इनकी राजनीतिक एकता भी समान नहीं थी, लेकिन सबको एक साथ जुड़े हुए रहने का कारण क्या था? सबको एक साथ जुड़े हुए रहने का कारण उनका सम्राट के प्रति जो निष्ठा था, उनका जुड़े हुए रहने का कारण क्या था? सम्राट के प्रति निष्ठा. So how did nationalism and the idea of nation state emerge? तो इतना होने के बावजूद भी कैसे उनके बीच में नेशनलिज्म का आइडिया आया, एक अलग राष्ट्र निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ. So let us start with the topic, the aristocracy and the new middle classes. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो होता था वो कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. कहने का मतलब उस कॉन्टिनेंट में जो कुलीन वर्ग थे, जो जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होते थे, कुलीन मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होते थे, मालिक होते थे, जमींदार लोग होते थे, उनका ज़्यादा पावर था उसमें. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ. और इसका जो मेंबर्स थे उसका सबका अपना एक कॉमन वे ऑफ आइडेंटिटी था, वे ऑफ लाइफ स्टाइल था. कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. दे ओन्ड स्टेट्स in the countryside and also towns. They want estates in the countryside and also town houses. गांव में भी उनका अपना ज़मीन होता था और टाउन में भी उनका अपना घर द्वार ज़मीन जायदाद होती थी. They spoke French for purpose of diplomacy and high society. ज़्यादातर उन वे फ्रेंच भाषा बोलते थे. Their families were often connected by ties of marriage. तो उनका जो ग्रुप था, उनका जो परिवार थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वैवाहिक संबंध भी उनके बीच में होता था. This powerful aristocracy was however numerically a small group. हालांकि इसका जो ग्रुप था वो छोटा था. मेजॉरिटी किसका था? पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. सबसे ज़्यादा लोग कौन लोग ज़्यादा थे? किसान लोग ज़्यादा थे. तो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estate which was cultivated by serfs. जो जमीन होती थी उस पर इनके जो जमीन होते थे उन पर छोटे छोटे किसान लोग, गरीब किसान लोग काम करते थे और जिनका ज़मीन कम होता था वे भी बड़े जमींदारों के घर में उनके खेतों में काम करते थे. सेंट्रल यूरोप में जो ज़मीन के मालिक होते थे और जो बड़े बड़े
जिनका ज़्यादा ज़मीन होता था उन पर लोग सर्फडम्स यानी परमानेंट रूप से जो नौकर काम करते हैं इनके घरों में, उस टाइप के किसान लोग काम करते थे। In Western and part of Central Europe, the growth of industrial productions and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was the base on productions for the market. पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं हम, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात कर रहे हैं। वहाँ पर उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुआ, शहरों का विकास हुआ। फिर अब धीरे धीरे जो कमर्शियल क्लासेस हैं, कमर्शियल क्लासेस करने का मतलब जो जो दुकानदारी वाला काम करते थे, ट्रांजैक्शन का काम कर रहे थे, ऐसे कमर्शियल क्लासेस का एग्जिस्टेंस हुआ सोसाइटी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन फ्रांस और अदर पार्ट ऑफ जर्मनी में के स्टेट्स में 19th सेंचुरी के समय यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कैम इन टू बिगिन। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नया सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ। ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। And in Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes. The ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. So, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास हुआ, एक नया सोसाइटी फिर बनने लगा। इसमें श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। फिर मध्य और पूर्व यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। जो कुलीन वर्ग थे, जो मालिक वर्ग थे, उनका विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। इसके बाद लोग शिक्षित होने लगे और लोगों के बीच जब शिक्षित होने लगा तो राष्ट्रीय एकता का विचार उन लोगों में आने लगा। तो इसी तरह से जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोगों का विचार भी बदलने लगा। जैसे कि एक बात हमने कहा था, ये राष्ट्रवाद और नए राष्ट्र का विचार कैसे उभरा। इसी तरह से आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन of 19th century, or we can say half of the 18th century, although in England half of the 18th century industrialization was started, and in France and German states 19th century the industrialization was started. So after industrialization, new society came in existence, and people became now educated, and by educating their thinking or their view of national unity was become popular. Next thing we will discuss about what did liberal nationalism stand for. तो अब लिबरल नेशनलिज्म क्या है, लिबरल नेशनलिज्म की क्या मायने थे, क्या मतलब है इसका।
इसके बारे में वी विल डिस्कस नाउ। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Okay. The term liberalism derives from Latin liber. Important thing is there, you must have to write and learn these things. Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from Latin root liber, means free. Liber means free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before law. और मिडिल क्लास के लिए क्या है लिबरलिज्म का मतलब? इनका मतलब है कि इनको सबको समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कानून के नज़र में सब समान हैं. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitutions and representatives government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो यूरोप में 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार आने लगा था. लिबरलिज्म, इस भाषा को कहाँ से लिया गया? ये भाषा ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है आज़ाद. लिबरलिज्म मीन्स आज़ादी. एक मध्य वर्ग के लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, मतलब सब कानून की नज़र में समान हैं. और राजनीतिक रूप से उदारवाद यानी लिबरलिज्म एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बना हो, ये नहीं कि वो अपने से बना हो, सबकी सहमति से जो बना हो वही लिबरलिज्म है. Yet equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage. Equality before law, कानून में भी सबको समानता, did not necessarily stand for universal suffrage. जरूरी यह नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था. You will recall that in revolutionary France, याद कीजिए, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man. फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा याद कीजिए. तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक जो था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो था, पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गया था. मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स. ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड all adult males enjoy suffrage. Only Jacobins were enjoying, Jacobins adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. In Napoleonic Code,
वेंट बैक टू लिमिटेड सफ्रेज, उसमें जो मताधिकार था उसको लिमिटेड कर दिया गया, एंड रिड्यूस्ड वोमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। संपत्ति विहीन जो पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, और जिसके पास संपत्ति था वही उसी को मताधिकार देने का हक था। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। नेपोलियनिक कोड के आने के बाद कुछ कानून में सुधार किया गया। उसमें क्या किया गया, जिसके पास संपत्ति होगा वही मत देगा, और जिसके पास संपत्ति नहीं होगा वो नहीं देगा। महिलाओं को इससे हटा दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यही जो वुमेन और जिनके पास संपत्ति विहीन लोग थे, नॉन प्रॉपर्टाइड मेन थे, वो एक ग्रुप बनाए और मूवमेंट्स किया और डिमांड करने लगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। इन इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। अब इकोनॉमिकल स्फीयर में देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, लिबरलिज्म मतलब सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग था। जितना भी ग्रुप था सोसाइटी में, सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब अपने अपने स्तर पर था। किसानों के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग था, पब्लिक के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग था, जिनके पास ज़मीन नहीं था उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग था, महिलाओं के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग था। अगर हम इस इकोनॉमिक स्फीयर की बात करते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब था कि ये फ्री मूवमेंट अपने गुड्स और कैपिटल्स को रन कर सकते हैं मार्केट में, अपने जहाँ भी चाहे वो उसको बेच सकते हैं, जहाँ भी चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस दिया गया था, इस रिस्ट्रिक्शंस से वो हटना, इस रिस्ट्रिक्शंस को वो हटाना चाहते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स had created out of countless small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weight and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have get to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. उस समय व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए। लगभग 11 कस्टम बैरियर्स लगाए जाते थे, उसमें 5% प्रत्येक कस्टम बैरियर्स पर 5% का उनको पे करना पड़ता था व्यापारियों को। ड्यूटीज वेर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज इच। कभी कभी ऐसा होता था कि जितना वजन है या जितना सामान है उनका, उसके हिसाब से उनको पे करना पड़ता था कस्टम ड्यूटी। एज इच रीजन हैड इट्स वन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व्स टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। The measures of clothes, for example, was the ille. Measure of cloth was known as ille, which in each region stood for a different length. लेकिन अलग अलग रीजन्स के लिए उसका मेजरमेंट होता था वो अलग अलग होता था। An ille of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in
फ्रीबर्ग 53.5 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग माप था। Such condition were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes. Obviously, this is obstacle for growing the business. It was obstacle of exchanging and growth of the new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territories, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. और ये जो कमर्शियल क्लासेस थे इनका डिमांड था ये जो कस्टम बैरियर्स ड्यूटीज़ लगते हैं इनको हटाया जाए और मेजरमेंट पूरे सारे टेरिटरी को यूनिफाई किया जाए और सारे टेरिटरी में एक ही जैसा मेजरमेंट हो। In 1834, Custom Union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 or 2. The creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economics interest to national unification. A web of economic nationalism strengthened and wider nationalist sentiments growing at the time. धीरे धीरे इन सभी चीज़ों में सुधार आने लगा और टेरिटरीज का यूनिफिकेशन होने लगा। ये जो नए बिजनेस ग्रुप के लोग थे ये आंदोलन किए, इसके विरोध किए और जहां वस्तुओं और लोगों का और पूंजी का इससे मतलब बाधित हो रहा था क्योंकि कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लग रहा था। फिर बात रही 1934 की, इसमें कस्टम यूनियन 1834 में प्रसा की पहल पर एक संघ बनाया गया है जोल्वरेन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसमें सभी ये जर्मन लोग उसमें शामिल हो गए और ये लोग जो टैक्स कस्टम ड्यूटीज लगाया जाता था उसका विरोध में आंदोलन करने लगा। और इसके बाद धीरे धीरे रेलवे ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, सब तरफ रेलवे का जाल बैठ गया, मूवमेंट गुड्स का मूवमेंट होने लगा, फिर नेशनल यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया। और उसी समय से धीरे धीरे ये जो राष्ट्रवादी वाला भावना था ये आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को और मजबूत बनाया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद फिर एक नया कंजर्वेटिज्म, मतलब आप लोग जानते होंगे रूढ़िवादिता जिसको कहते हैं। So following the defeat of Napoleon in 1815, European government was driven by a spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार हो गई। उसके बाद यूरोपियंस के बीच में एक नया रूढ़िवादिता आ गया। कंजर्वेटिज्म believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. रूढ़िवादिता वाले जो कंजर्वेटिज्म वाले जो लोग थे वो मानते थे क्या कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे आपका राजतंत्र हुआ, चर्च हुआ, फिर सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, शुड बी प्रिजर्व्ड। मोस्ट कंजर्वेटिव
however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make a state power more effective and strong. A modern army, and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. ऑटोक्रेटिक मतलब इसमें नेपोलियन द्वारा जो शुरू किया गया था परिवर्तन, उनको ये जान लेना था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करते थे। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को अकेले हराना मुश्किल था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। Who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. ड्यूक मैटरनिच जो हैं ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. 1815 में ब्रिटिश, रूस, प्रशा और ये विभिन्न यूरोपियन कंट्री जो हैं ये सब मिलकर नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए ये वियना में मिले थे 1815 में, ठीक है ना। इस सम्मेलन में मेज़बानी ड्यूक मैटरनिक जो थे इन्होंने इसका मेज़बानी किया था। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियनिक युद्धों के दौरान हुए थे। रिस्टोर द पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हटाया गया बूर्बोन वंश की सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिनका कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया था, और फ्रांस सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच पेडमोंट इन द साउथ, Prussia was given important new territories on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland,
while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. नेपोलियन को तो हरा दिया इन लोगों ने, और नेपोलियन को हराने के बाद में इन्होंने 1815 में एक संधि किया जिसका ड्यूक मैटरनिच जो थे उसका मेज़बानी कर रहे थे। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि मोनार्चिकल गवर्नमेंट को फिर से लाना, और मोनार्चिकल गवर्नमेंट को लाने के लिए लोगों को कंजर्वेटिव पेटिज्म बनाना, और जो नेपोलियन के समय में जो सुधार हुए थे उसको सबको खत्म करना। तो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1850 वेर ऑटोक्रेटिक। 1815 में कंजर्वेटिव शुरू हुआ और ये क्या था? ऑटोक्रेटिक था। दिस डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, and songs, and reflected the idea of liberty and freedom. You can see in this picture. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें the club of thinkers, this is the club of thinkers and it is about 1820। बाईं तरफ देखिए एक पट्टी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि आज की बैठक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब ठीक है, और हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, मतलब एवरीथिंग वाज रिटन इन दिस एंड दे आर in a meeting, they are discussing। सभी कोई देखिए अपने मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, और इनका कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उनका पहला नियम क्या होता है? खामोशी यानी साइलेंसी। और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो हल्ला करते हैं, पढ़े लिखे लोग शांत रहते हैं। So associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। 1815 में जो कंजर्वेटिज्म शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक थी। ये क्रिटिसिज्म और जो सपोर्ट नहीं करता था उसको बर्दाश्त नहीं करता था। ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए थे जिनका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटक, गीतों के व्यक्त कर उन बातों को नियंत्रण में लगाया था, ठीक है ना, लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। कहने का मतलब ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था और वैसे सभी चीज़ों को ये नष्ट कर दिए जिनसे लोगों का नेशनलिज्म की तरफ विचार उभरने लगे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही। नई रूढ़ी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा था, वो है प्रेस की आज़ादी। मतलब अगर प्रेस की आज़ादी रहेगी तो लोग अपने बातों को रख सकते हैं, लोग अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर today, dear students. We will start the revolutionaries in our next video. So stay with us in YouTube
Thank you for watching this video. Once again, I want to say you that please subscribe the channel and suggest me if any suggestion is there. Please write in comment box. Wish you all the best.